جنت سے نکالا گیا. ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو ایک غلطی کی وجہ سے only on mistake اور جس کی وجہ سے ان دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا. تو ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، ہم اگر غلطی پر غلطی کرتے جائیں اور اپنے جوانی کو پریم لیلا میں، جوانی کو رنگ رلیوں میں، جوانی کو گناہوں کے کاموں میں، جوانی کو اپرادھ کے کاموں میں، جوانی کو جرائم کے کاموں میں، جوانی کو اسلام کے خلاف دوسری چیزوں میں اگر ہم گزاریں تو ہمارا انجام، ہمارا پرینام کیا ہو سکتا ہے، ہماری اوستھا اور ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گانوں سے پربھاوت نہ ہو، ہم گانوں سے امپریسڈ نہ ہو، ہم گانوں سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہم قرآن و حدیث سے متاثر ہوں، ہم قرآن و حدیث سے پربھاوت ہو، قرآن و حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان، ابھی آج کی تاریخ ہے 19 دسمبر، ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، ہیپی کرسمس ڈے، بڑا دن. یہ ہیپی کرسمس ڈے کن لوگوں کا تہوار ہے؟ کرسچین کا، نصرانیوں کا تہوار استبر فیسٹیول ہے. اور اسی نصرانیوں کے تہوار میں ہم بھی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے دوست کو، ایک دوسرے فرینڈ کو ہم بھی ہیپی کرسمس ڈے کا میسج بھیجتے ہیں، ابھینندن بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں. اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی کو ہیپی کرسمس ڈے بھیج دیا تو میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میرے ایمان میں فرق آ جائے گا. میرا ایمان تو اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کو ہیپی کرسمس ڈے بھیج دیا تو کمزور ہو جائے گا. کسی کو اگر ہیپی نیو ایئر کا میسج بھیج دیا تو کوئی پریشانی ہو گئی، کسی کو اگر ہیپی برتھ ڈے کا میسج بھیج دیا تو کوئی پریشانی ہو گئی، کسی کو اگر ہیپی اینیورسری کا میسج بھیج دیا تو کوئی پریشانی ہو گئی. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کو معلوم ہوتا، اگر آپ قرآن مجید پڑھ لیے ہوتے، اگر آپ قرآن مجید کے اندر غور کیے ہوتے، آپ کو اس خطرناکی کا اندازہ ہو جاتا. ہیپی کرسمس ڈے یہ نصرانیوں کا تہوار ہے، یہ نصرانیوں کا اتسو اور فیسٹیول ہے، اور یہ کتنا خطرناک عقیدے پر مشتمل ہے، کتنا خطرناک عقیدہ اس کے پیچھے ہے. اگر آپ نے غور کر لیا ہوتا، اگر آپ نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھ لیا ہوتا، آپ کو پتہ چل جاتا کہ ہیپی کرسمس ڈے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل سے اس کو کہتے ہیں، آپ کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا. آپ کو نئی طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، کلمہ شہادہ کا اچارن کر کے آپ کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ نے دل سے ہیپی کرسمس ڈے کا میسج بھیجا اور اس عقیدے کو اگر آپ نے مانا تو آپ کا ایمان، میرا ایمان باقی نہیں رہ سکتا. کیوں؟ آئیے ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں. چونکہ ان تمام چیزوں کو نوجوان لوگ ہی زیادہ مناتے ہیں، نوجوان لوگ ہی پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو 25 دسمبر آ رہا ہے ہیپی کرسمس ڈے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ اس تہوار کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سمپرک نہیں ہے. کرسچین کا یہ تہوار ہے. اور آپ انٹرنیٹ میں جا کر کے سرچ کیجئے، دیکھیں آپ کو پتا چلے گا. کرسچین میں 2 قسم کے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اور جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعت، ان کے اندر بھی تفرقہ بازی ہے، متبھید ہے. لیکن 2 بڑی جماعت ہے کرسچین کے اندر، ایک ہے آرتھوڈاکس کرسچین اور ایک ہے کیتھولک کرسچین. آرتھوڈاکس کرسچین کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ پرانی چیزوں کو مانتے ہیں، باپ داداؤں کی چیزوں کو. اور کیتھولک کرسچین جو اپنے دھرم اور اپنے دین کے اندر کچھ نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس جو 2 جماعت ہیں، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کا یہ ماننا ہے کہ بڑا دن کون سا ہے؟ 25 دسمبر ہے. ذرا غور سے سنیے تب باتیں سمجھ میں آئے گی. ان دونوں جماعت میں سے ایک جماعت کا ماننا ہے کہ 25 دسمبر یہ بڑا دن ہے، کرسمس ڈے ہے، اور ایک جماعت کا ماننا ہے کہ 7 جنوری بڑا دن ہے. یہ ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو.
ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر یہی بڑا دن کے طور پر منایا جاتا ہے نصرانیوں کے درمیان، لیکن جو کیتھولک اور آرتھوڈاکس ہیں ان دونوں جماعت میں سے ایک جماعت کا ماننا ہے کہ 25 دسمبر کو جو ورلڈ وائڈ منایا جاتا ہے، پورے وشو کے اندر منایا جاتا ہے، جس کو مطلب بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، سب لوگ مان لیے ہیں، وہ کیا ہے 25 دسمبر۔ اور کچھ لوگ ہیں جو لوگ مناتے ہیں 7 جنوری کو۔ لیکن دونوں جماعتوں کا عقیدہ خطرناک عقیدہ ہے۔ ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بڑا دن کرسمس ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ایک جماعت مانتی ہے کہ ہم کرسمس ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ہیلپر، سہایک ہے، ہیلپر آف گاڈ ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے اور ذرا آپ جواب دیں مجھے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، یا اگر کوئی ہم میں سے آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ہیلپر مانے، اس کا ایمان صحیح رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ پا رہے میری اردو؟ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانے، کیا اس کا ایمان صحیح رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ہیلپر مانے، اللہ کو کسی آدمی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اللہ کا ہیلپر یعنی اللہ کا ساتھی کام کاج کرنے میں، یہ اگر مانے تو دونوں عقیدہ خطرناک ہیں۔ اگر اللہ کا بیٹا مانے پھر بھی آپ ایماندار نہیں رہ سکتے، اگر اللہ کا ہیلپر مانے پھر بھی آپ ایماندار نہیں رہ سکتے، آپ کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ دونوں عقیدہ پر مشتمل یہ کرسمس ڈے کا پالن کیا جاتا ہے، اور اسی کرسمس ڈے کے موقع پر ہم نوجوان، ہم بوڑھے، بچے، سب کوئی کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس ڈے کا میسج بھیجتے ہیں، ابھینندن بھیجتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کرسمس ڈے کا میسج بھیج دینے کی وجہ سے میرے ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ نہیں، اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ عقیدہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، میسج لکھنے سے پہلے آپ کا ہاتھ کانپ جاتا، آپ کا دل تھرا جاتا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا، آپ کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ میسج لکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، الغرض کسی بھی آدمی کو اگر اللہ کا بیٹا مانا جائے، یہ عقیدہ اگر ہم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غصہ ہوتا ہے، کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اب اٹھائیے سورہ مریم، سورہ نمبر 19، آیت نمبر 88، 89، 90، 91، 92، 5 آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے بیٹا کو اختیار کیا، بیٹا کو مانا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے بیٹا کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، اے لوگو، اے وہ لوگو جو اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہو، اللہ کے لیے بیٹا اختیار کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، لقد جئتم شیئا ادا، تم لوگوں نے بہت ہی بری چیز لائے ہو، بہت ہی بھاری چیز لائے ہو، اتنی بری چیز لائے ہو، اتنی بھاری چیز لائے ہو کہ اس بھاری کی وجہ سے، اس بری چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنا ناراض ہوتا ہے
है, इतना गुस्सा होता है, इतना संतुष्ट होता है कि करीब है आसमान फट जाए, जमीन धंस जाए, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु, आसमान फट जाए, व तनशक्कुल अर्ज़ु, जमीन धंस जाए, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ रुई की तरह रेजा रेजा हो जाए। क्यों ने तुम लोगों ने अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, रहमान के लिए बेटा साबित करने की कोशिश की, रहमान के लिए बेटा इख्तियार करने की कोशिश की, रहमान के लिए, रहमान के ऊपर तुम लोगों ने ये इल्जाम लगाया, ये अपवाद दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का बेटा है। व मा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि रहमान के ये शायान शानी नहीं है, रहमान के लिए ये मुनासिब भी नहीं है, अल्लाह के लिए ये मुनासिब ही नहीं है कि वो किसी आदमी को अपना बेटा बनाए, वो ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाए, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा बनाए, या अल्लाह तबारक व तआला मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी बीबी बनाए। ये रहमान के शान के खिलाफ है, ये रहमान के शायान शान ही नहीं है, ये रहमान के लिए मुनासिब ही नहीं है। जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है कि अगर ये अकीदा कोई रखता है, अल्लाह के लिए अगर ये बेटा मानता है, अल्लाह के लिए अगर किसी को बीबी मानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना नाराज होता है, इतना गुस्सा होता है कि आसमान फट जाए, जमीन धंस जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इसी अकीदे के ऊपर मुश्तमिल क्रिसमस डे का पालन किया जाता है, इसी अकीदे को लेकर के हैप्पी क्रिसमस डे का पालन किया जाता है। और हम नौजवान, हम बूढ़े और हम बच्चे जो भी है, हर कोई मैसेज लिखने में हम मस्तो मगन हो जाते हैं। हम एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे की मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहकर के अभिनंदन देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इस अकीदे के ऊपर मुश्तमिल ये त्योहार मनाया जाए और आप मुसलमान होकर के, ईमान का दावा करके, मोमिन होने का दावा करने के बावजूद आप एक दूसरे को मैसेज भेजे, गोया कि आप इस अकीदे की सपोर्ट कर रहे हैं, इस अकीदे का समर्थन कर रहे हैं। तो जरा आप अपने गरेबान में हाथ रख करके जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये अकीदे के ऊपर ये त्योहार मनाया जाए, ये उत्सव मनाया जाए, ये फेस्टिवल मनाया जाए, और हम अगर उसमें समर्थन करें, हम अगर सपोर्ट करें, मैसेज दे करके एक दूसरे के दरमियान खुशियां बांट करके, हमारा ईमान कैसे सही सालिम रह सकता है, हमारा ईमान कैसे बरकरार रह सकता है, हमारा ईमान कैसे पक्का हो सकता है? कितना पक्का ईमान है मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, कितना पक्का ईमान है आपका हमारा कि ईमान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ता। किसी को हैप्पी क्रिसमस डे की मैसेज भेजते फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाकर के माथा टेक दे फर्क नहीं पड़ता, किसी मूर्ति के सामने जाकर के नमस्कार कर दे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत हो गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आज होता है ना, बड़े बड़े नेता और पॉलिटिशियन, उनको देखिए पॉलिटिक्स में आकर के न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा के मंडप में जाकर के नमस्कार करते हैं और जाकर के माथा को टेकता है, सजदा करता है, अपने सर को नमन करता है। क्या उसका ईमान बरकरार रह सकता है? क्या उसका ईमान सही सालिम रह सकता है? एक मूर्ति के सामने जाकर के आप नमस्कार करें, एक मूर्ति के सामने जाकर के आप नमन करें, एक मूर्ति के सामने जाकर के आप सजदा करें, माथा टेके, फिर भी आपके ईमान में कोई फर्क ना आए तो बड़ी परेशानी है। तब आपने तौहीद का माना सीखा ही नहीं है, तब आपने तौहीद का माना समझा ही नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, नौजवानों, होशियार, खबरदार, सावधान, सतर्क हो जाएं। ईमान जिसको हम मजबूत कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कब हमारा ईमान हमसे खत्म हो चुका है हमें पता ही ना चले, कब हमारा ईमान हमसे खत्म हो जाए हमें पता ही ना चले। मैं नौजवानों की बात कर रहा था। नौजवान आजकल गाना सुनते हैं, म्यूजिक से लगाव रखते हैं और गाना सुनते हैं और गाना सुन करके ये गुनाहों के मैदान में कूद पड़ते हैं, छलांग लगाते हैं। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि ये मौलवी है या गाना गाने वाला है, गाना के बारे में कहने लगा।
لیکن میں نے آپ سے کہا کہ گانا آج کل سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ادھر ادھر سے آواز آ جاتی ہے، اور کتنا خطرناک گانا ہے میں تھوڑا سا ساودھان کرنے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، آپ اپنے ایمان کی رکشا کر لیں، آپ اپنے ایمان کو سمجھ لیں، اور شرک کتنا خطرناک ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے نوجوانوں۔ اپنے جوانی کو قرآن و حدیث کے کام میں لگائیں، گانوں کے کام میں نہیں، پریم لیلا میں نہیں، رنگ رلیوں میں نہیں، گناہوں کے کاموں میں نہیں، اسلام کے خلاف کاموں میں نہیں۔ آج جتنے بھی میوزک اور جتنے بھی سانگ تیار کیا جاتا ہے وہ اسلام کو بگاڑنے کے لیے، اور ان میں سے سب سے خطرناک وہ سانگ ہوتا ہے جس میں شرکیہ کلام ہوتا ہے۔ بہت مشہور نوجوانوں کے درمیان ایک گانا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کتنا خطرناک گانا ہے؟ اگر ایک آدمی اس گانا کو گاتا ہے، اگر وہ دل سے گاتا ہے، اگر وہ معنی سمجھ کر کے گاتا ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں رہ سکتا۔ کیا یہاں کہا جا رہا ہے؟ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں۔ پریمک اپنے پریمیکا سے کہہ رہا ہے، پریمک اپنے پریمیکا سے کہہ رہا ہے کہ ارے مجھے تو تمہارے اندر ہی رب دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیا یہ توحید کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ ایکیشورواد کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ وننس آف گاڈ کا عقیدہ ہے؟ یہ توحید کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود بریلویوں کے اندر جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ رب کیا ہے، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی ہے، شیخ کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے، تمام لوگوں کے اندر رب ہے۔ رب ہر ایک کے دل کے اندر ہے، رب ہر طرف ہے، چاروں طرف ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ پریمک کہہ رہا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، یعنی تمہارے اندر میں رب کو دکھائی دے رہا، میں دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ جب تمہارے اندر میں نے رب دیکھ لیا تو میں سجدہ کر رہا ہوں، میں سر جھکا رہا ہوں، میں نمن کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کسی آدمی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک آدمی کسی آدمی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، اگر ایک آدمی کے لیے دوسرے آدمی کے لیے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے لیے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو آدیش دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے وہ بھی سجدہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر مجھے رب دکھائی دے رہا ہے، اس لیے میرا آٹومیٹک سر جھک جا رہا ہے، میں تمہیں سجدہ کر رہا ہوں۔ کتنا خطرناک عقیدے پر مشتمل یہ گانا ہے۔ ویسے گانا تو تمام کے تمام گانا گناہ پر ہیں، تمام کے تمام گانا غلط ہیں، لیکن یہ جو گانا ہے اور خطرناک ہے، اس سے ہمارا اور آپ کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم معنی سمجھ کر کے یقین کے ساتھ اگر یہ گانا گاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ کلمہ شہادہ پڑھ کر کے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ گانا چاروں طرف چلتا ہے، آپ دیکھیں گے ادھر ادھر انوشٹھان میں، اتسو میں، فیسٹیول میں، विवाह के अनुष्ठान में चारों तरफ ये गाना चलता है और नौजवान बड़े शौक से गाता है, लेकिन कभी माना के अंदर गौर नहीं किया। रूप तेरा रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। अल्लाह तबारक व तआला किसी का रूप देख करके परेशान हो जाए? अल्लाह को किसी का रूप देख करके हैरान होने की जरूरत है? अरे अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, अल्लाह किसी का रूप देख करके परेशान हो जाएगा? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना खतरनाक अकीदा है कि अल्लाह तुम्हारा रूप देख करके अल्लाह भी परेशान है, रब भी परेशान है, कुदरत भी परेशान है। कुदरत का मतलब अल्लाह, यहाँ रब भी परेशान है, कुदरत भी परेशान है तुम्हारा रूप देख करके। और ये सब गाना हमारे नौजवान अपने जुबान से एकदम खुशी खुशी बयान करते हैं, खुशी खुशी गाते हैं, थोड़ा भी गौर फिक्र नहीं करते हैं। बयान करने का मकसद ये है, एक बड़ी लिस्ट है अगर बयान किया जाए, बयान करने का मकसद ये है कि आज हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें जो जवानी की हालत मिली है, हमें जो जवानी का स्तर मिला है, हमें जो यौवन का स्तर मिला है, हमें जो जवानी का स्टेज मिला है, इस जवानी को हम दीवानी करेंगे या इस जवानी को हम अल्लाह की इबादत में लगाएंगे?
इस जवानी को हम मिस्टेक में गंवाएंगे या इस जवानी को हम शरीयत के कामों में गंवाएंगे? इस जवानी को अगर हम गैर इस्लामी कामों में लगाएंगे, प्रेम लीला और रंग रलियों में लगाएंगे, या इस जवानी को हम अल्लाह की इबादत में लगाएंगे, इस्लाम के कामों में लगाएंगे? ये आज हमें फैसला करने की जरूरत है। মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে এগিয়ে বসুন। এখানে যদি আপনাদের জায়গা না হয় তাহলে মসজিদের বিকালে আপনাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে পরিচিতির ব্যবস্থা আছে। আপনারা মসজিদে গিয়ে ওখানে বসে জালসা শুনতে পারেন। आज हमें फैसला करना है कि हम अपनी जवानी को कहाँ खर्च करेंगे, अपनी जवानी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। उर्दू ज़बान में एक शायर कवि कहता है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। जवानी की एक ऐसी हालत होती है कि जवानी की हालत में काम करने से पहले हमें और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बदन के अंदर ताकत होती है, जिस्म के अंदर शक्ति होती है, पावर होती है, बल होता है, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी हालत में अगर हम अल्लाह की इबादत ना करें, ऐसी हालत में अगर हम इस्लाम का काम ना करें, ऐसी हालत में अगर हम ईमानदाराना जिंदगी ना गुजारे, ऐसी हालत में अगर हम गैर मुस्लिमों की तरह गैर इस्लामी कामों में अपनी जवानी को ख़त्म कर दें, तो फिर हमें सोचना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। और जो आयतें और जो हदीसें अल्लाह तबारक व तआला ने जिन आयतों के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस के अंदर हमें ये उभारा है, हमें ये सबक देने की कोशिश की है, हमें ये सबक दिया है, शिक्षा और तालीम दिया है, क्या इन नौजवानों तुम अपनी जवानी को इस्लाम के कामों में लगाओ, जवानी को अच्छे कामों में लगाओ। आज उन तमाम आयतों को पढ़ करके अमल में लाने की ज़रूरत है, वरना हमारी जवानी कब आई और कब ख़त्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आप ज़रा उन लोगों से पूछिए जिनकी उम्र 60 या 70 साल की हो गई है, उनसे पूछिए कि उनकी उम्र कैसे गुजर गई। वो आपको जवाब देंगे कि पलक झपकते ही गुजर गई, पलक झपकते ही गुजर गई। कब जवान बचपना आया, कब जवानी आई और कब फिर बुढ़ापा आ गया, कब फिर अल्लाह के पास जाना पड़ेगा पता नहीं। आप जो इतराते हैं ना, आप जो अहंकार करते हैं, आप जो तकब्बुर करते हैं और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने पावर का प्रदर्शन करते हैं और जवानी की हालत में एक दूसरे के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं, गुनाहों के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, ऐसे नौजवानों जरा कान खोल कर सुन लो और ये याद रखो कि एक ऐसा वक्त भी आया था, बचपना का वक्त जिसमें तुम कमजोर थे, और एक ऐसा वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह जिसमें तुम फिर कमजोर हो जाओगे, फिर तुम बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाओगे, तुम्हारे बदन के अंदर, जिस्म के अंदर ताकत नहीं होगी, तुम्हें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। आइए एक हदीस में सुनाता हूं। जवानी की हालत को हमें अहमियत देनी चाहिए, जवानी की उम्र को, जवानी के स्टेज को हमें मूल्यवान समझना चाहिए, इम्पोर्टेंस इसकी जो है इसको हमें समझना चाहिए। मशहूर और मारूफ हदीस है, बड़ी फेमस हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी नरेटर हैं। ये हदीस मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 7846 और सहीहुल जामे लिल अलबानी, अल्लामा अलबानी की किताब सहीहुल जामे, उसके अंदर भी हदीस आई है 1077 नंबर हदीस। बड़ी मशहूर हदीस है, मैं बयान करूंगा आपको पता चल जाएगा। इस हदीस के ज़रिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि जवानी की हालत को हमें अहमियत देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्या फरमाया? इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाबका क़ब्ल हरमिक, वसिहतका क़ब्ल सकमिक, वगिनाअका क़ब्ल फ़क़रिक, वफ़रागका क़ब्ल शुग़लिक, वहयातका क़ब्ल मौतिक। ऐ साहबे किराम सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली साहबे किराम से बयान किया और इनडायरेक्टली दुनिया के तमाम इंसानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं। ऐ लोगों सुनो, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खम्स, ऐ लोगों तुम्हारी जिंदगी में 5 चीजें आने से पहले, 5 स्तर आने से पहले, 5 स्टेज आने से पहले, 5 जो हालत तुम्हें मिली है, इन 5 हालतों की अहमियत को समझ लो। तुम्हारी जिंदगी में 5 एक
ऐसी हालत आने वाली है कि 5 हालतों के आने से पहले जो तुम्हारी हालत है, जो तुम्हारी अवस्था है, जो तुम्हें मिला है, इस चीज की अहमियत को समझ लो। शबाबका कब्ल हरमिक, नंबर 1 शबाबका कब्ल हरमिक, जवानी की हालत मिली है। जवान तुम सब के सब हो, जौवन का अवस्था तुम्हें मिला है, जौवन तुम्हें मिला है, जवानी तुम्हें मिली है कब्ल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की अहमियत को समझ लो। बुढ़ापा जब आ जाएगा काम करने की ताकत नहीं रहेगी, बुढ़ापा जब आ जाएगा खाना खा करके मजा नहीं आएगा, बुढ़ापा की हालत जब आ जाएगी खाना खाने के बाद बदहजमियां होने लगेगी, बुढ़ापा की हालत आएगी उठने में तकलीफ होगी, बैठने में तकलीफ होगी, सोने में तकलीफ होगी, पेशाब पाखाना करने में तकलीफ होगी। पेशाब करने जाओगे, पेशाब करने के बाद पेशाब का फिर कतरा गिर जाएगा, फिर तुम्हारे दिलों के अंदर एक बेकरारी आ जाएगी, पेशाब का कतरा गिर गया, मेरी नमाज होगी या नहीं होगी। ये सब परेशानी ही परेशानी है। ये बुढ़ापे की हालत जो है, बुढ़ापे की हालत आने से पहले जो तुम्हें जवानी मिली है, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी की अहमियत को समझ लो। सिर्फ इतना ही नहीं, नंबर 2 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिहतका क़ब्ल सकमिक, ऐ लोगों तुम्हें ये स्वास्थ्य मिला है, तुम्हें ये हेल्थ मिला है, तुम अभी हेल्दी हो, तुम अभी स्वास्थ्यवान हो, तुम्हारे बदन के अंदर कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बीमारी आने से पहले अपने हेल्थ की कदर कर लो, अपने हेल्थ की अहमियत को समझ लो। नंबर 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वगिनाअका क़ब्ल फ़क़रिक, ऐ लोगों जो मालदार हो, धन दौलत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, रुपया पैसा से तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, हो सकता है कि तुम फकीर हो जाओ, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रुपया पैसा छीन ले। रुपया पैसा छीनने से पहले ये जो धन दौलत मिला है, ये जो रुपया पैसा मिला है, ये जो तुम्हें धनी बनाया गया है, मालदार बनाया गया है, इसकी कदर कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये रुपया तुमसे छीन लिया जाए, तुमसे हटा लिया जाए। नंबर 4 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा फराग का क़ब्ल शुगलिक, आज तुम्हें वक्त मिला है, आज तुम्हें टाइम मिला है, आज तुम्हें समय मिला है, टाइम मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आज तुम इस जलसे में हाजिर हो, पता नहीं तुम्हें वक्त मिले या ना मिले। आज तुम्हें टाइम मिला है, नमाज पढ़ पा रहे हो, आज तुम्हें टाइम मिला है, नेकियों के कामों में शरीक हो पा रहे हो, पता नहीं कल तुम्हें वो मौका मिले या ना मिले, पता नहीं कल तुम्हें वो मौका तुम्हें मिले या ना मिले, तुम्हारे जीवन में वो मौका आए या ना आए। आज जो तुम्हें मौका मिला है, आज जो तुम्हें समय मिला है, आज जो तुम्हें वक्त मिला है, इसकी कदर कर लिया करो, इसकी अहमियत को समझ लिया करो। नंबर 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हयात का क़ब्ल मौतिक, और ऐ लोगों तुम्हें आज ये जिंदगी मिली है, ये बेहतरीन जिंदगी मिली है, 60 साल की जिंदगी मिली है, किसी को 70 साल की जिंदगी मिलेगी, किसी को 80 साल की जिंदगी मिलेगी, किसी को 90 साल की मिलेगी, किसी को हो सकता है 100 साल की मिल जाए, किसी को हो सकता है 100 साल से कुछ और ज्यादा मिल जाए। ये जो तुम्हें जीवन मिला है, ये जो तुम्हें उम्र मिली है, ये जो तुम्हें वक्त मिला है, ऐ लोगों इस जीवन को तुम अहमियत समझ लो, इस जीवन की कदर कर लिया करो। हो सकता है कि कल तुम्हारी मौत हो जाए। अभी आपके ये मौलाना साहब बयान कर रहे थे, तकदीर की बात बयान करते हुए कि एक इंसान की मौत जहां लिखी हुई रहती है वहीं वो आदमी पहुंचता है और वहीं उस आदमी की मौत होती है। अगर उसकी मौत एक्सीडेंट में लिखी हुई है, वो जरूर वहां पहुंचेगा और उस गाड़ी के चक्का के नीचे वो जरूर आएगा। जिस आदमी की जहां मृत्यु लिखी हुई है, जहां मौत लिखी हुई है, वहां उसे पहुंचाया जाएगा और उसे मौत आनी ही आनी है। कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मौलवी साहब मैं तो इस दुनिया के अंदर हमेशा जिंदा रहने के लिए आया हूं।
मैं तो इस दुनिया के अंदर हमेशा जीवन बिताने के लिए आया हूँ। कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं तो इस दुनिया के अंदर अमर होकर के रहूंगा। जब ये दावा नहीं कर सकते, हम सब ये मानते हैं हर एक को मौत का मजा चखना ही चखना है। कल हो सकता है आपको मौत आ जाए, हो सकता है इस जलसे के बाद आपको मौत हो जाए, हो सकता है इस जलसे के अंदर किसी की मौत हो जाए। कोई ये नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। जिसकी मौत जिस हालत में लिखी हुई है, जिस अवस्था में लिखी हुई है, मौत तो आनी ही आनी है। ऐ लोगों, हयात का कबल मौत के, मौत आने से पहले जीवन की कदर कर लिया करो, मौत आने से पहले जिंदगी की कदर कर लिया करो, मृत्यु आने से पहले इस जीवन की अहमियत को समझ लिया करो। मेरे भाई और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों की कदर करने का हुक्म दिया। उनमें से नंबर 1 सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया? शबाब का कबल हरमिक। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, तुम्हें जवानी मिली है, तुम्हें यौवन मिला है, तुम्हें जौवन मिला है, जौवन की हालत में हो, इस हालत की कदर कर लिया करो। कल तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तुम कुछ करने के लायक और काबिल ही नहीं रहोगे। कदर कर लिया करो, अहमियत को समझ लिया करो। हो सकता है कि कल हमें और आपको मौका वो मिले या ना मिले, वो वक्त मिले या ना मिले, वो समय मिले या ना मिले। आज हमें कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत 6412, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। 2 ऐसी नेमत हैं जिस नेमत के बारे में अक्सर लोग, ज्यादातर लोग धोखे में पड़े हुए हैं। 2 ऐसी नेमत हैं अल्लाह की तरफ से कि जिन 2 नेमतों के बारे में ज्यादातर लोग क्या है, धोखे में पड़े हुए हैं। अस्सिहा वल फराग, एक है समय, एक है वक्त, एक है टाइम, और दूसरा क्या है? अस्सिहा, सेहत, स्वास्थ्य। एक स्वास्थ्य है, हेल्थ है, और एक क्या है? समय है। ये हमें स्वास्थ्य, हमें ये हेल्थ मिला है, हम हेल्दी अभी हैं, स्वास्थ्यवान बने हुए हैं, इसकी कदर कर लेनी चाहिए। हमें ये वक्त मिला है, ये जवानी का समय, और जवानी का एक समय ऐसा है कि जवानी में हमें वक्त भी मिलता है, और जवानी में हमें क्या मिलता है? स्वास्थ्य भी मिलता है, हेल्थ भी मिलता है। एक जवानी की ऐसी हालत है, इस जवानी की हमें कदर कर लेनी चाहिए। पता नहीं वो वक्त हमें मिले या ना मिले। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जवानी को इंटरनेट के गलियों में जा करके, अश्लील वीडियो में डूब करके, रातों रात जाग करके अपने जवानी को ख़त्म मत कीजिए। कुरान और हदीस, ये इस्लाम जवानों की तरफ देख रहे हैं, ये इस्लाम जवानों की तरफ देख रहे हैं कि आओ नौजवानों, तुम्हारी ज़रूरत है, आओ नौजवानों, तुम अपनी जिम्मेदारी का पालन करो, आओ नौजवानों, तुम अपने ड्यूटी का पालन करो। तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, हर एक के ऊपर ड्यूटी है, अपने अपनी ड्यूटी का पालन करो। नौजवानों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, आओ अपनी जिम्मेदारी का पालन करो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ये इंटरनेट इतना आसान और इतना सहज हो गया है। आजकल तो डेटा भी बड़ा सस्ता हो गया है ना। पहले तो 97 रुपया में 1 GB मिलता था, 1 महीने तक चलाओ। उसी में हम फक्र करते थे, खुश हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, अरे 1 GB मिल गया है 1 महीने तक। आजकल तो एक ही दिन में 1 GB मिल जाता है। बहुत सारे लोग तो 1.5 GB, 2 GB, 3 GB तक अपना डेटा मारते हैं। इतना आसान, और हाथों में सब कुछ आ चुका है, और एंड्रॉयड मोबाइल की तो कमी नहीं है। किसी एक आदमी ने कहा था कि फास्ट डेटा ऑफ इंटरनेट एंड प्राइवेसी आर वेरी डेंजरस। नहीं समझ पाए? प्राइवेसी एंड फास्ट डेटा ऑफ इंटरनेट आर वेरी डेंजरस। यानी अगर किसी आदमी को प्राइवेसी मिल जाए, प्राइवेसी अकेला, आजकल मोबाइल होने की वजह से हर कोई अकेला रहना पसंद करता है। हालांकि जब और जितना आप अकेला रहेंगे उतना आप गुनाहों के दलदल में फंसते जाएंगे।
जितना अकेला रहेंगे गुनाह के दलदल में फंसते जाएंगे। लेकिन आजकल पसंद करते हैं, क्यों? इसलिए मोबाइल है। अरे किसी के पास अगर 4 आदमी दोस्त एक आपस में बैठे भी हुए हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, पिकनिक मनाने भी गया है, एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने ही मस्तो मगन है। आजकल कहा जाता है ना, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, क्या जाकर के कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा हेल्थ सही नहीं रहता है, आप जरा आप बताइए मुझे कुछ नियम पद्धति सिखा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ वर्जिश वगैरह करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, क्रिकेट वगैरह खेलो। तो वो कहता है कि मैं खेलता हूँ रोजाना। कहे कितने घंटे? कह रहे जब तक बैटरी खत्म नहीं होती, यानी मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती तब तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या जब तक बैटरी खत्म नहीं होती गेम खेलता हूँ, जब तक बैटरी खत्म नहीं होती है वो पबजी खेलता रहता हूँ। आपके इलाके में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं, मेरे इलाके में एक हुआ है, ये हकीकी सच्चा वाकया है, अल्लाह गवाह है। मेरे वहाँ एक हुआ है, ये पबजी खेलते खेलते इतना पागल बन गया है कि अचानक वो बैठा रहता है, बैठे रहकर दिमाग खराब हो गया, बैठे रहता है, अचानक ढिच्चो ये करता रहता है। ये हकीकत है, अल्लाह गवाह है, हमारे गांव में ये हुआ है, आपके यहाँ इलाके में हो रहा है नहीं पता नहीं मुझे। तो ये फास्ट डेटा ऑफ इंटरनेट एंड प्राइवेसी आर वेरी डेंजरस। इसलिए आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने तन्हाई को छोड़ें, लोगों के साथ रहे, लोगों के साथ उठे बैसे, लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर करें और इंटरनेट से हम दूर रहने की कोशिश करें। यह अलग बात है कि इंटरनेट में भी अच्छाई की कमी नहीं है, मोबाइल में भी अच्छाई की कमी नहीं है, मोबाइल में भी बड़े बड़े उलमा इकराम की तकरीर है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि हम ज्यादातर गुनाहों के कामों में जाते हैं। हम लेते हैं मोबाइल, अपने बाप के पास, अब्बू के पास, क्या कहते हैं, अब्बू जी मुझे मोबाइल लेकर के दो, पढ़ाई की जरूरत है, डिक्शनरी रहेगा वगैरह रहेगा। लेते हैं सबक के नाम पर, लेते हैं शिक्षा के नाम पर, लेते हैं एजुकेशन के नाम पर, लेकिन करते हैं क्या? अश्लील वीडियो में जाकर के फंस जाते हैं, घुस जाते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, आप और हम सब अपनी जवानी को, बिलखुसूस मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाए। मैं एक बयान करूँगा, सूरा कहफ के अंदर सूरा नंबर 18 आयत नंबर 13 जो असहाबे कहफ का वाकया बयान किया गया है। यह असहाबे कहफ, सूरा कहफ को उठा करके जाकर के जरा आप लोग स्टडी कीजिएगा, दहन कीजिएगा, पढ़िएगा, पता चलेगा कि असहाबे कहफ कुछ चंद नौजवान थे, चंद नौजवान। पहले वो आयत देख लेते हैं तब बात समझ में आसानी होगी। सूरा कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 13, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ऐ अल्लाह के नबी, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़, अल्लाह ताला का बयान है, अल्लाह के नबी हम आपके ऊपर उन नौजवानों की कहानी को हक के साथ बयान कर रहे हैं। उन नौजवानों की कहानी, सच्चाई कहानी, सच्ची कहानी को हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु, वो चंद नौजवान थे, यहाँ उलमा इकराम बैठे हुए हैं। इन्नहुम फितिया, फितिया ये जमा किल्लत है, और जमा किल्लत ये 3 से लेकर 9 तक लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, यानी उनकी तादाद कम से कम 3 या अगर ज्यादा से ज्यादा मान लिया जाए तो उन लोगों की तादाद 9 थी। वो 3 से लेकर 9 ये नौजवान थे। आमनु बिरब्बिहिम, जिन लोगों ने अपने रब के ऊपर ईमान लाया। दिकियानूस नामी एक बादशाह था, वो अपनी इबादत करने पर लोगों को उभारता था, अपनी पूजा पाठ करने पर लोगों को उभारता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार हो गए, तौहीद को मान लिए, एक शुरुआत को मान लिए। इन लोगों ने ये समझा अगर कोई इबादत के लायक है वो अल्लाह तबारक व तआला है, अगर कोई पूजा पाठ के लायक है वो अल्लाह तबारक व तआला है, अगर कोई इलाह है वो अल्लाह तबारक व तआला है, उसी के सामने मैं सजदा कर सकता हूँ, उसी के सामने मैं माथा झुकाऊंगा। दिकियानूस बादशाह के खिलाफ हो गए। मैं मुख्तसर
मसलन बयान कर रहा हूँ। दिकियानूस बादशाह को जब पता चला तो इनको मारने के लिए लोगों को इनके पीछे भेज दिया गया। अब ये लोग अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हिफाजत और रक्षा करने के लिए गार के गुहा में जाकर के, गार में जाकर के, एक पहाड़ के गुहा में जाकर के छुप जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करिश्मा होता है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि ये लोग 309 साल तक उस गार के अंदर सोकर रहते हैं, नींद की हालत में रहते हैं। सुभान अल्लाह। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला उस गार में उन लोगों को नींद के अंदर रखते हैं। पूरा वाकया है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस सूरा को जाकर के पढ़ें, अध्ययन करें, आपको पता चलेगा। ये जब नींद से जागते हैं, ये लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो दोपहर को सोया था, असर की नमाज का टाइम हुआ, अभी उठ गया। या कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अरे 1 दिन तक शायद सुबह को सोया था, अभी शाम हुई है, या शाम को सोया था, अभी सुबह हुई है। लेकिन 309 साल तक सो करके रहे। अब ये जब खाना लेने के लिए बाजार की तरफ गए और वो अपना सिक्का लेकर के गए ना, तो वो सिक्का तो 309 साल बीत गया होगा, तो वो सिक्का चलेगा? जैसे 5 आना, 10 आना, 20 आना ये सब रहता था, हाँ 50 पैसा, 25 पैसा, ये सब खत्म हो गया ना। तो अगर ये 10 साल बाद अगर कोई इसको निकाले दुकान के पास जाकर के, अभी अगर कोई 5 आना लेकर के जाए, आपको देगा कोई? कुछ नहीं देगा, सामान नहीं देगा। 309 साल गुजरने के बाद अपना सिक्का ले जा रहा है। वो लोग हक्का बक्का हो गए, अरे आपको ये सिक्का कहां से मिल गया? वो लोग सोचने लगे हो सकता है कि इन लोगों को कोई खजाना मिल गया हो बादशाहों का। तो ये पूरा वाकया है मेरे भाई और दोस्तों। बयान करने का मकसद ये है कि ये लोग ईमान ले आए। नौजवान, इन्नहुम फित्यतुन आमनु, ये सब के सब नौजवान थे। फित्यतुन ये फतन की जमा है। फतन ये क्या है? सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या है? फितिया, जमा किल्लत। यानी ये नौजवान थे जिन्होंने अपने रब के ऊपर ईमान लाया। इन्होंने अपनी जवानी को किस काम में लगाया? रब के काम में लगाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी को किस काम में लगाया? रब के काम में लगाया। सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 60 उठा करके देखिए। कालू समेना फता यस्कुरुहुम युकालु इब्राहिम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया था, मैं इशारा कर रहा हूँ, बुतों को तोड़ दिया था, जब ये लोग मेला से वापस आए और जब देखा कि ये बुतों की हालत तो एकदम खराब, तितर बितर हो गया है, इधर उधर, किसी का पैर इधर पड़ा हुआ है, किसी का हाथ इधर पड़ा हुआ है। अब आकर के ये लोग गुस्सा हो गए, ये काम किसने किया? हमारे माबूदों के साथ बेइज्जती, असम्मान, ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा कि समेना फता, हमने एक नौजवान को सुना है, यस्कुरुहुम, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ वो बातें कर रहा था। और युकालु इब्राहिम, उसे इब्राहिम कहा जाता है। पता क्या चला? नौजवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवानी को इस्लाम के काम में लगाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवानी को इस्लाम के काम में लगाया। इस्लाम का पहला मुअज्जिन बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जवान अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाया। तारिक बिन जियाद, इन्होंने इस्लाम के काम में अपने जवानी को लगाया। मुआज और मुअब्बिज, ये दोनों नौजवान इस्लाम के खतरनाक दुश्मन अबू जहल को कत्ल किया था, जान से खत्म किया था। ये मुआज और मुअब्बिज दोनों नौजवान थे, इन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाया। आज हम नौजवान किस काम में लगा रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों? आज हम कहां जा रहे हैं? आज हमारा दिशा कहां जा रहा है? आज हम किसकी तरफ जा रहे हैं? किसकी तरफ और किसकी तरफ हम मुतवज्जा हो रहे हैं? हमारी रुख किसकी तरफ जा रही है? आज हमें गरेबान में झांक करके गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जवानी को हम किस काम में लगा रहे हैं। और ये जो नौजवान अपनी जवानी को मोबाइल लेकर के, इंटरनेट लेकर के, तन्हाई के आलम में जाकर के, रातों रात जाग करके, अश्लील वीडियो में डूब करके अपने जवानी को खत्म करने पर तुले हुए हैं, ऐसे नौजवानों के तई एक हदीस में बयान करना चाहूँगा। सुनन इब्ने माजा, गालिबन ये हदीस सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4242, गालिबन शायद 4242, एक पूरी लंबी हदीस है। आप जरा गौर से सुनिए। बिलखुसूस मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा और आम तौर पर इन जनरल तमाम लोगों से कहना चाहूँगा,
کہ اگر ہم تنہائی کے عالم میں جا کر کے گناہ کے دلدل میں ڈوب جائے تو اس کا ایک برا پربھاؤ، ایک برا اثر ہمارے اوپر کیا پڑ سکتا ہے۔ ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہے ان تمام نیکیوں کا جنازہ نکل جائے گا، یہ تمام کے تمام نیکیاں برباد، تمام کے تمام نیکیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ہم تنہائی کے عالم میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کے سامنے بڑا متقی بنا رہتا ہے، پرہیزگار بنا رہتا ہے، اچھا آدمی بنا رہتا ہے، لیکن جب تنہائی کا عالم ملتا ہے، جب وہ اکیلا رہتا ہے تو گناہ کر لیتا، سوچتا ہے کہ کون دیکھنے والا ہے، کون مجھے روکنے والا ہے، کون مجھے ٹوکنے والا ہے، کون منع کرنے والا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ ایسے آدمی، ایسے تمام لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا ساودھان، سترک ہو جائیں۔ اگر تنہائی کے عالم میں گناہ کریں گے، تمام کے تمام جو بھی نیکیاں کیے، یہاں تک کہ اگر آپ نے راتوں رات جاگ کر کے تہجد گزاری ہے، تہجد میں اپنی رات کو گزاری ہے، تہجد کی نماز آپ نے ادا کیا ہے، پھر بھی تہجد کی نیکیاں بھی آپ کو کامیابی دلانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، تہجد کی نیکیاں بھی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر غالباً 4242، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ قال صوبان صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال يا صوبان أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امتوں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، میں اپنی امتوں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ کتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے؟ امثال جبال تہامۃ بیضاء، تہامہ پہاڑ کے برابر، ایک نیکی نہیں، دو نیکی نہیں، تین نیکی نہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے میدان محشر میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ تبارک و تعالی یہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو دھول میں برباد کر دے گا، گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا، سب کے سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، تمام کے تمام نیکیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک نیکی، دو نیکی، تین نیکی نہیں، پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن تمام کے تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا، دھول میں تبدیل کر دے گا۔ جب یہ خطرناک جملہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ کے نبی ذرا ان لوگوں کے بارے میں آپ کھول کر کے بیان کر دیجئے، ذرا ان لوگوں کے بارے میں پرہیزگار کر کے بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، کہیں ہماری گنتی ان لوگوں میں ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، آپ ذرا غور سے، آپ ذرا صاف سے ہمیں بیان کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اے صوبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اے صوبان سنو، اما انہم اخوانکم، اے صوبان، وہ جو لوگ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا، وہ دوسری دنیا کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ دوسرے سماج کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ دوسرے سوسائٹی کے لوگ نہیں ہوں گے، اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے ہی سماج میں رہنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک برائی ہوگی، اور وہ یہ بھی ہوں گے
वयाखुज़ून मिनल लैल कमा ताखुज़ूना, तुम जिस तरह से रात में जाग जाग करके तहज्जुद पढ़ते हो, तहज्जुद की नमाज अदा करते हो, वो भी तहज्जुद गुजारी करेंगे, वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इन तमाम के तमाम नेकियों के बावजूद उनके अंदर एक गलती होगी, एक अभ्यास खराब होगा। वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा खलो बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, जब वो अकेला रहेंगे, जब वो तन्हाई के आलम में रहेंगे, अब जब कोई तन्हाई के आलम में गुनाह का काम मिलेगा, अपराध का काम मिलेगा, जुर्म का काम मिलेगा, वो उस जुर्म को कर गुजरेंगे, उस गुनाह को कर गुजरेंगे, उस गुनाह को कर गुजरेंगे। तन्हाई के आलम में रहेंगे, उस गुनाह को कर गुजरेंगे। आपने गौर किया, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मैदान महशर में, तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ करके, अच्छे अमाल कर करके, इतनी नेकियां बटोर करके अल्लाह के पास जाकर के हाजिर होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम नेकियों को गर्दो गुबार में तब्दील कर देगा। क्यों? इसलिए कि वो तन्हाई के आलम में जाकर के गुनाह के दलदल में फंस जाया करते थे। आज भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, सावधान सतर्क हो जाए कि अगर तन्हाई के आलम में जाकर के हम गुनाह करते हैं, हमने जो नेकियां की हैं, हमने जो अच्छा काम किया है, वो भी बर्बाद हो जाएगा, उसका भी खात्मा हो जाएगा, उसका भी जनाजा निकल जाएगा। कहने का मकसद ये है मेरे भाई और दोस्तों, बिलखुसूस मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ और बिलअमूम इन जनरल तमाम लोगों से कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को, अपनी उम्र को, अपने समय, अपने टाइम और अपने वक्त को इस्लाम के काम में लगाए, कुरान और हदीस के काम में लगाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान और हदीस का मुताला करें, कुरान और हदीस का अध्ययन करें, कुरान और हदीस का स्टडी करें और सही तरीके से स्टडी करें, अच्छे उलमा इकराम से पढ़ें और जाने समझें और समझ करके दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है, या रब्बल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस नौजवानों को, नौजवान मर्दों, नौजवान बहनों, नौजवान भाइयों को इस्लाम के काम में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हम में से जो मकरूज़ है, उधार लिए हुए हैं, उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन इस मजलिस के इनेकाद में जिस आदमी ने जो भी सहायता किया है, हर एक की सहायता को तो कबूल फरमा ले, और इस मजलिस में जितने भी हाजिर हैं अल्लाह हम सब की हाजिरी को तो कबूल कर ले और इस हाजिरी के बदले हमारे गुनाहों, हमारे अपराध, हमारे जराइम को तो जराइम का कफ़ारा बना दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।